ڈاکٹر عافیہ کیس خراب کرنے میں پاکستان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان کی جو موجودہ سیاست ہے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پاکستان کی سیاست کے لوگوں کا ہی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ کہ ڈاکٹر عافیہ کو $1 میں بیچا گیا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ ہمارے پاکستان کی بیٹی اتنی عام تھی، ان کے سوال کو نیکسٹ اور ٹاٹا بائے بائے بولنے کو کہہ دیا۔ اتنی وہ عام لڑکی تھی جس کو بنا وجہ اتنی بڑی سزا دے دی گئی اور 86 برس کی سزا سنا دی گئی۔ السلام علیکم ناظرین، مسلم ورلڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عاطفہ شیخ۔ ناظرین، افسوسناک خبر، بہت دل دکھانے والی خبر، جو کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا، ان لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا، ان لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی ہے۔ ناظرین، میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر عافیہ کیس کی۔ شاید آپ کو یاد ہو 2010 میں 7 الزامات پر ڈاکٹر عافیہ کو جوری نے 86 برس کی سزا سنا دی تھی اور بلا وجہ کسی بھی الزامات میں اسے ملوث کر اسے جیل بھجوا دیا گیا تھا، بلکہ اسے اغوا کروایا گیا تھا۔ دہشت گردی کے الزامات لگا کر اسے افغانستان سے امریکہ بھجوایا گیا تھا۔ وہ غائب ہو گئی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا وہ کہاں پر ہیں۔ اچانک سے انہیں غائب کر دیا گیا اور لوگ پریشان ہو گئے کہ وہ گئی آخر کہاں ہے، اور خفیہ طریقے سے انہیں اٹھوایا گیا اور انہیں امریکہ بھجوا دیا گیا۔ یہ پاسٹ کی میں کہانی سنا رہی ہوں۔ 2010 میں ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ کیا کیا ہوا، وہ 86 برس کی ان کو سزا سنا دی گئی تھی، اتنی لمبی ڈیوریشن کی سزا، اور پاکستان سے لوگوں نے بھجوایا، پاکستان کے جو حکمران تھے انہوں نے بھجوایا۔ کس الزامات پر؟ دہشت گردی کے الزامات پر، ہمارے پولیس اہلکاروں کی مرڈر کے الزامات پر، بہت سارے الزامات ان پر لگائے گئے اور ان کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ وہ کہتی تھی کہ میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں، لیکن ان کی آواز کسی نے بھی نہیں سنی۔ اور اب جو ان کے بارے میں باتیں کہی جا رہی ہیں، جب ان کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں، وہ بالکل بہت افسوس زدہ ہیں۔ بہت دکھ کا اظہار کرنا پڑے گا مجھے، بہت دل دکھانے والی خبر ہے، جو کہ ہمارے جیل میں بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ کچھ اس طرح کی کہانی ہے ڈاکٹر عافیہ کی۔ کچھ باتیں سامنے آئی ہیں لیکن زیادہ باتیں نہیں سامنے آئیں، کیونکہ ڈاکٹر عافیہ کو کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا۔ ڈاکٹر عافیہ کی جو رہائی تھی وہ سیاسی نعرہ بن کر رہ گئی۔ ڈاکٹر عافیہ کا کیس خراب کرنے والے ہمارے سیاست کے لوگ تھے، ہمارے حکومت تھی، جو کہ ڈاکٹر عافیہ کا کیس اتنا خراب کر دیا، اتنے ان پہ الزامات لگا دیے گئے، انہیں رہائی کی کوئی امید ہی نہیں رہی۔ کہیں نہ کہیں ان کو سیاست کے لوگ ہی امید دلاتے رہے، لیکن بات سچ ہے، سیاست کے لوگ ہی انہیں کہیں نہ کہیں دسلاتے رہے اس کام میں، اس چیزوں میں، اپنے معاملات سیٹ کرنے کے لیے، اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے۔ جو اس کیس کو خراب کرنے والے تھے وہ بڑے بڑے نام تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے جو اس کیس کو خراب کرنے میں شامل تھے، ملوث تھے۔ اور جب ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، جب وہ امریکہ کا دورہ کرنے گئے تو تب پتہ لگا کہ وہ ڈاکٹر عافیہ سے ملے، اور لوگوں کو بھی بہت امیدیں تھی کہ ان کے گھر والوں کو بھی بہت امیدیں تھی ڈاکٹر عافیہ کے، کہ شاید اس بار کوئی معجزہ ہو جائے کہ وہ چھٹ کر آ جائیں، جو ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں وہ مٹ جائیں اور وہ چھوٹ جائیں، کیونکہ ان پہ بے بنیاد الزامات تھے۔ ان کو خفیہ طریقے سے افغانستان سے نکال کر انہیں امریکہ شفٹ کروایا گیا اور امریکہ کی جیل میں رکھا گیا۔ وہاں بھی ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا، انہیں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ جیل میں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، 2 بار زیادتی کی گئی، 1 بار بھی نہیں۔ اور جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی بہن کی، تو انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے۔ انہوں نے بولا کہ جب مجھے جیل سے باہر لے کے جایا جاتا تھا تو میں واپس اندر آتی تھی تو میری اس طرح چیکنگ کی جاتی تھی کہ مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اس طرح نازیب طریقے سے میری چیکنگ لی جاتی تھی۔ اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، اندر کے ملزمان نے ان کے ساتھ کس طرح کی حرکتیں کی۔ ان سب میں ہمارے حکمران شامل ہیں، کیونکہ ہمارا جو پاکستان کے لوگ ہیں، جو پاکستان کے حکمران ہیں، انہیں بچا نہیں سکے، انہیں واپس نہیں لا سکے۔ امریکی لوگ، امریکی حکومت بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، وہ بھی شرمندہ ہے کہ یہ سب ہماری جیل میں پاکستان کی عوام اتنی ہے کہ وہ انہیں واپس نہیں لا سکی۔ جب عمران خان دورے پہ گئے امریکہ کے، تو ان کے یہ لوگوں کی یہ امیدیں وابستہ ہو گئی کہ شاید عمران خان امریکہ کے جو صدر ہیں اس پر دباؤ ڈالیں گے، اس پر پریشرائز کریں گے انہیں کہ ہماری جو پاکستان کی
लोगों की आवाज़ थी, लोगों की इतनी प्यारी डॉक्टर आफिया थी, जो कि लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत लोग उनसे करते थे। जो हमारे मुल्क की बेटी थी, उसको बचाया जाए, उस पे जो गलत इल्ज़ामात लगाए गए हैं, वहाँ से निकाल कर उसको वापस लाया जाए। बहुत सारी उम्मीदें थी, उनके घरवालों की उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। उन पर दबाव नहीं डल सकता। सब बातें बनकर रह गई और उनके लिए कुछ ऐसा नहीं किया गया जो कि हमेशा जिसकी भी हुकूमत चलती रही आती रही, अपनी हुकूमत के जोर में अपनी हुकूमत में बिजी रहे, अपनी ही मसले सुलझाते रहे, अपनी ही चालाकियां लगाते रहे, लेकिन डॉक्टर आफिया को इंसाफ नहीं मिल सका। उनके साथ ज्यादती पे ज्यादती, ज्यादती पे ज्यादती, और अब पता चला है कि वो जिनसी ज्यादती का निशाना बनी है और जेल में बनी है। जेल के ही लोगों ने उन पर ज्यादती की है और ये बहुत अफसोसनाक खबर है। ये अगर हम साबिक जितने भी हमारे वजीर आजम हैं उनकी बात करें, उनके लिए भी अफसोसनाक है कि आप इस तरह की हुकूमत चलाते हैं, इस तरह लोगों को लीड करते हैं कि लोगों के साथ इस तरह हो रहा है। और वो भी पाकिस्तान की ऐसी बेटी जिसको उठा कर अफगानिस्तान से गलत इल्जामात लगाकर दहशतगर्दी के इल्जामात पर जेल में भिजवाया जाए और खुफिया तरीके से अमेरिका में भिजवाया जाए और वहाँ से उसको बचाया ना जाए, हमारे पाकिस्तान के लोग उसको बचा के वापस ना लेके आ सकें। माहिरीन का कहना है कि डॉक्टर आफिया का केस इतना खराब कर दिया गया है, इतना खराब, ये पीछे से सुनते आ रहे हैं कि अब तो कुछ बातें ही नहीं रही हैं। तब की बातें हैं, 2010 से की बातें मजीद सुनने को आ रही है कि इतना केस खराब कर दिया है कि हमारे मुल्क का जो वजीर आजम भी होगा ना, तो इस केस को दुरुस्त नहीं कर सकता, इस केस को हैंडल नहीं कर सकता, इसको डॉक्टर आफिया को बचा नहीं सकता। तो ऐसा क्यों है? अपने मुल्क के लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो ये इंसाफ कौन देगा? हमारे माशरे को इंसाफ कौन देगा? हमारे जो लीडर्स हैं वो खुद मुलविस हैं इन कामों में, अपनी सियासी लड़ाइयों में। उन लोगों को कौन इंसाफ देगा जो लोग हैं, लोगों की आवाज़ है, और जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ दबोच दी जाती है। इस हवाले से हमारे एक सहाफ़ी हैं, बहुत फेमस सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, डॉक्टर शाहिद मकसूद, कि जब उन्होंने ये दावा किया था कि डॉक्टर आफिया केस खराब करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है, पाकिस्तान की जो आने वाली सियासत है, मौजूदा सियासत है, इनका बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान की सियासत के लोगों का ही बहुत बड़ा हाथ है। और डॉक्टर आफिया जो केस है, डॉक्टर आफिया को हमारी सियासी लड़ाई ने खा डाला है, जो कि अब वो निकल नहीं सकती उस लड़ाई के बाद। ये तब की बातें थी और ये बात अब आके सच हो रही है। डॉक्टर आफिया के साथ जो चीजें हुई, जो उनके साथ ज्यादती होती रही, अभी तो हमने 2 ज्यादती का हमें पता नहीं उनके साथ किस तरह उनका इंटरव्यू लिया जाए, या हम लोगों के वहाँ लोग जाएं और उनसे बात करें तो किस किस चीज़ों के इंकशाफात सामने आए। तो अभी ये सिर्फ 2 बातें हैं जो सामने लाई जा रही हैं। फिर ये मामला बहुत पेचीदा है, इस मामले में बहुत कम लोग बात करते हैं। तो ये डॉक्टर शाहिद मकसूद का ये भी कहना है कि ये जब खबर पता चली तो सबसे पहले डॉक्टर शाहिद मकसूद ने ही ये डॉक्टर आफिया वाली खबर ब्रेक की थी, खबर निकाली थी कि डॉक्टर आफिया खुफिया तरीके से अफगानिस्तान से अगवा होकर अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, या उनको अमेरिका भिजवा दिया गया है और वहाँ की जेल में है। कुछ लोगों के बहुत सारे इंकशाफात थे कि हमारा अमेरिका वालों को भी हमारा बंदा छोड़ने डॉक्टर आफिया को उसके बदले वापस दे दिया जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि डॉक्टर आफिया को कितने डॉलर्स, पता नहीं कितने डॉलर्स में बेचा गया है। व्हाइट हाउस में जो सहाफ़ी मौजूद थे उनका कहना था कि जब इमरान खान कॉन्फ्रेंस में हम मौजूद थे तो उन्होंने, जब उनसे डॉक्टर आफिया का सवाल किया गया तो उन्होंने वो सवाल इग्नोर किया, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया, सवाल को यहीं तक गुजर कर दिया, बाय बाय टाटा बोल के। उन्होंने बोला नेक्स्ट, अगला सवाल कीजिएगा। क्यों? डॉक्टर आफिया हमारे पाकिस्तान की बेटी इतनी आम थी कि उनके सवाल को नेक्स्ट और टाटा बाय बाय बोलने को कह दिया। इतनी वो आम लड़की थी जिसको बिना वजह इतनी बड़ी सजा दे दी गई और 86 बरस की सजा सुना दी गई, झूठे इल्जामात लगाए गए, 7 झूठे इल्जामात लगाए गए और उसको इतनी बुरी सजा से अफगानिस्तान से अगवा कर उसको अमेरिका भिजवाया गया। सियासी लड़ाई में आम पाकिस्तान की लड़की का क्या कसूर था? पाकिस्तान की औरत का क्या कसूर था? हम माशरा इन सियासी लड़ाइयों में हम लोग क्यों आते हैं? हम लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले हमारे हुक्मरान हैं, तो हम लोग क्यों आते हैं? डॉक्टर आफिया को बहुत अफसोसनाक खबर आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने पहले भी बताई, लेकिन अब जो बातें इंकशाफात हुए हैं, जो बातें इंकशाफ की गई हैं, वो ये है कि डॉक्टर आफिया को अमेरिका जेल में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये बहुत खौफनाक बात है हमारे माशरे के लिए, हमारे हुक्मरानों के लिए बहुत
गंदी गलीज बात है कि हमारे पाकिस्तान की बेटी के साथ जेल में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाए। जेल में भी वो महफूज नहीं है, वो बंदी जेल में भी महफूज नहीं थी। एक तो झूठा केस डॉक्टर आफिया के बारे में कहा गया है कि 20 साल में डॉक्टर आफिया कई बार दर्दनाक अजाब से गुजरी हैं, जो कि वो नहीं बता सकती, जो कि उन्होंने नहीं बताया। ये तो उनकी ही कई बातें हैं जो साबित हुई हैं। साथ ही साथ जो उनके बुखला हैं साफेट समेत, जो कि अमरीकी शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है बहैसियत कि वो अमरीका में रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग कि वो शर्म महसूस कर रहे हैं अमरीका में रहकर। ये बात करते हुए डॉक्टर आफिया के बुखला कि जेल में रह के उन्हें जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, उन्हें पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उन्हें बचाया नहीं, उन्हें बचा के लेके नहीं गए यहाँ से, उन्हें यहाँ छोड़ दिया। इन्होंने बताया कि इस बात से पाकिस्तान भी आगाह है और इस बात को पाकिस्तान को भी पता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की हुकूमत के लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं। वो भी इस जुर्म में शामिल है, वो भी इस जुर्म में पूरी तरह शामिल है। लेकिन ये पाकिस्तान की नाकामी है, पाकिस्तान की सरासर नाकामी है, पाकिस्तान की हुकूमत की नाकामी है कि पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान की प्यारी बेटी के साथ इतना गलतनाक जुल्म किया गया है कि वो आफिया को वापस नहीं ला सके। तो ये बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर आफिया को हम लोग बचा के वापस नहीं ला सके। हमने उधर ही उन्हें छोड़ दिया और उनको ज्यादती का निशाना बनाते गए। पता नहीं कितनी बार उनसे ज्यादती की गई। डॉक्टर आफिया के जो वकील थे, वकला थे, उन्होंने बताया कि मुझे शर्म आती है ये बात करते वक्त भी। मैं सोचता भी हूँ तो मेरी रूह कांपती है और मुझे ऐसा लगता है कि झूठ है, मैं ये चीज को मानता नहीं हूँ, लेकिन मेरी सोच मुझे झूठ लगती है। दर हकीकत ये सच बात है कि डॉक्टर आफिया के साथ जेल जहाँ अमरीकी जेल है, वहाँ पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। तो डॉक्टर आफिया को इंसाफ नहीं मिला। इतने सालों बाद इतनी हुकूमत आई, परवेज मुशर्रफ के दौर में इंसाफ नहीं मिला, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हमारे, उसके दौर में इंसाफ नहीं मिला। डॉक्टर आफिया को इंसाफ कब मिलेगा? हमारे माशरे की, हमारी सोसाइटी की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा? ये कब सेफ रहेंगे? हमारे हुक्मरान से ये गुजारिश है, हमारे जो सियासी जो लोग हैं उनसे ये सिफारिश है कि अपनी लड़ाइयों में अवाम को मत घसीटें। अपनी लड़ाइयों में हमारे पाकिस्तान की बेटी डॉक्टर आफिया को ज्यादती का निशाना मत बनाए और इन्हें महफूज तरीके से पाकिस्तान लाया जाए और उनको इंसाफ दिलाया जाए, उनके घर वालों को सब्र दिया जाए और इंसाफ के साथ इन्हें पाकिस्तान में इज्जत के साथ लाया जाए, उनके केस की पैरवी की जाए। अब तक के लिए इतना ही नाजरीन, अगली वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान आतिका शेख। अल्लाह हाफ़िज़।